We have a different question, which is basically in this case, we have a tech manufacturing company. So they have a previous model, which they refer as an old model, and now they come up with a newer model. And before they put that new model into the market, they want to assess if the performance of the new model is significantly better than the older model or not. Right, like it's a common, like हम भी अगर कोई भी product बनाए तो we would like to know कि हमारा जो नया product है, is it better than the older one or not. We want to know it beforehand before we put it into the market, in front of the customer base or the audience. So this is the question or we're trying to answer in this part. And of course, like, now the nature of the question is different from the one we did in the previous video in the regression problem. Here we are trying to answer a different question. We have the means of two different groups, of two different models. And by the way, our parameter of interest, like, how are you going to measure this? Like, if we're trying to evaluate these two models, on what basis, we need some measure, and the measure is the number of steps taken daily. And not directly, we're just given with the means of for each model. We can use the mean, and we will have to use the mean and the standard deviation and come up with the decision. So we need to make a decision based on this data. And let's make the hypothesis. Hypothesis is the status, like the null hypothesis is the status quo, and the alternate hypothesis is the challenge or what we want to know. Like, alternate hypothesis is is the statement of our interest, what we want to know. And in this case, we want to know if there is a difference, or in other way, it's more effective in increasing. So matlab, we're trying to see the difference, right? That's another way to put it. Like, if I just put it in other words, I'm trying to see the difference between both, right? And these are the mean. And let's say mu new is the mean of the new model, and mu old is for the old model. And the status quo is that both are equal. And if both are equal, then the difference between both is going to be zero, right? If both are equal. But what if the newer model is more effective, or is not equals to old? The mean of the new model is not equals to old. Then this equation, sorry, is not going to equals to zero. Right. So these are our hypotheses. This is the null hypothesis. This is the alternative hypothesis. Now we need to make a decision between both. We need to pick one, and based on this data, we're going to use. Uh, yeah. So let's come to this side of the question. So we use the two sample t test. So it can differ in the exam paper. Like, maybe we look at the z, so both tells you the same thing. Like, whenever we have two different groups, two independent groups, right, and we try to see, like, to solve such kind of a situation, we use either t test or the z test. Now, what's the difference between the both? We could have applied the z test here, but the problem is that in z test I require the standard deviation of the population. If I would have know the standard deviations of population, then only I will be able to apply the z-test. Because to apply the z-test, I need the standard deviation of the population. But in this case, I'm just given these 1500, 1400 is the standard deviation of the samples of 150 and 150, right? This is not for the population. And just to be clear here, population is a bigger. Maybe the customer size was 1,000. Excuse me. The customer size was 1,000. I only picked 300 people. The rest of the 700, I'm not. I just randomly chosen the 300 people because it's easier for me to run an experiment on 300 people rather than 1,000. And what's the agenda? Like, why we really do this? Because the idea is to randomly choose the people.
like a reasonable sample size, and based whatever the insights I'm going to get from this sample, I will project those insights on my 1,000 people. So that's how the chain works. I pick a smaller size. I study, I experiment on those, on the smaller chunk of people or the my sample size, and then based on the findings on the sample, I infer those findings. I project those findings onto the whole population. And because I'm not aware of the fact कि standard deviation population का क्या है, तो मैं यहाँ पे z test तो नहीं लगा सकता. तो जब आपके पास population का standard deviation नहीं given होता, तो then you have to move towards the t test, right? तो यहाँ पे t test इसलिए यूज हुआ है. अब यहाँ पे टी टेस्ट की वैल्यूज उन्होंने मुझे डायरेक्ट दे दी हैं. अब टी टेस्ट की वैल्यू आ रही है 2.09. मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम है 298. मेरी पी वैल्यू है 0.038. और मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल है 20 से लेके 679.7 का. हाँ. अब कॉन्फिडेंस इंटरवल को यहाँ पे समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्फिडेंस इंटरवल पे काफी कंफ्यूजन्स हो सकती हैं. How do we really understand the confidence interval? It's basically the probability of the true population means were actually equal or no real difference. How likely is it to get a difference as large as we observed just by random sampling? So it means कि अगर मैं अपनी रैंडम लाइक मेरे पास अगर 1,000 का वो डिफरेंट वो था पॉपुलेशन थी, और मैंने पहले 300 लिए, फिर मैं 300 वापस करूँ, और मैं 300 फिर कोई डिफरेंट निकाल के लाऊं, फिर 300 डिफरेंट निकाल के लाऊं, लाइक मैं आइट्रेटिवली अगर 300 के सैंपल्स निकालता रहूं और उस पर आइट्रेटिवली स्टडी करूं, तो उनकी उसकी जो मीन की रेंज है वो इसमें आएगी. लाइक वो जो डिफरेंस आएगा ना, वो इसके अंदर फॉल कर रहा होगा. वो जो आइट्रेटिवली मैं सैंपल्स ले रहा हूँ, उनका जो डिफरेंस है ओल्ड और न्यू के मीन का, वो इसमें फॉल कर रहा होगा. उसके चांसेस 95%. ठीक है. इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका जो मीन का डिफरेंस है वो हमेशा वो यू आर 95% कॉन्फिडेंट. It's not like that. It's telling you about the sample. Like if you iteratively choose different samples, तो उस अगर आपने 100 सैंपल लिए तो 95% सैंपल्स का जो मीन डिफरेंस होगा वो इसमें फॉल कर रहा होगा. दिस इज व्हाट द कॉन्फिडेंस इंटरवल मीन्स, राइट. एंड देन 298, व्हाट डज इट मीन? आपकी ऑब्जर्वेशंस कितनी थी? 300. और आपके ग्रुप्स कितने थे? 2. तो बेसिकली एन माइनस इनको आप के, इनको भी के कह लो. आपके ग्रुप्स कितने थे? 2 थे, तो 300 माइनस 2 इज बेसिकली 298. ठीक है. तो दिस इज हाउ यू डू दैट. दिस इज हाउ वी फाइंड द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. अब इसका इसका पहले अगर मैं क्वेश्चंस पे जाऊं, मैं सिर्फ ये बता दूं कि इसमें टी वैल्यू, एक आपको दो तरह की टी वैल्यूज होंगी. दो तरह की टी वैल्यूज हैं. एक आप डेटा से कैलकुलेट करते हो. डेटा बाय डेटा आई मीन जो ये मीन और स्टैंडर्ड डिवीएशन दी हुई है. ठीक है. इसका फॉर्मूला आपके पास होता है एक्स बार, x1 बार माइनस x2 बार. अगर मैं इसी उसकी टर्म्स में लिखूं तो वैसे लिखूंगा. मैं उसी की टर्म्स में लिख देता हूँ. म्यू न्यू, म्यू बेसिकली द मीन ऑफ द न्यू मॉडल, माइनस म्यू ओल्ड. माइनस नहीं, एक सेकंड. हाँ. म्यू म्यू सॉरी, माइनस अगेन सिमिलर यहाँ पे आएगी, लेकिन यहाँ पे वो भी आएगा, इसके साथ एच नॉट भी आएगा. सही है. एच नॉट भी आएगा. और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्टैंडर्ड एरर का डिफरेंस. अब इसका डिफरेंस निकालने का अलग तरीका होता है. लेकिन एच नॉट यहाँ पे क्या कह रहे हो आप लोग? एच नॉट आपका क्या है? यहाँ पे जीरो है. तो ये आपका वैसे ही जीरो हो जाएगी ये वाली टर्म. जब ये जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो ये वैसे ही जीरो हो जाएगी. तो यू विल ओनली लेफ्ट विद द म्यू माइनस म्यू ओल्ड अपॉन द स्टैंडर्ड एरर का डिफरेंस.
ठीक है। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास जो टी की स्टेटिस्टिक आएगी वो 2.09 या इसी के अराउंडिंग आएगी, मतलब बेसिकली 8। अगर आप मीन वहां से लो, आपका मीन क्या था? अगर इसको 20 माइनस 7850 अपॉन स्टैंडर्ड एरर कैसे फाइंड करते हैं? स्टैंडर्ड एरर फाइंड करने का होता है कि S1 स्क्वायर N1 प्लस S2 स्क्वायर N2 अंडर रूट। तो ये आपका स्टैंडर्ड एरर, ये आपका S1 है, ये आपका S2 है। तो ये अगर इनकी वैल्यूज इसमें प्लग कर दो तो आपके पास यहाँ से जो टी स्टेटिस्टिक आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 2.09 के इक्वल आना चाहिए। थोड़ा सा नंबर ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन इसी के इक्वल आएगा। अब अगर आप विदाउट लुकिंग एट द टी टेबल, अब ये वो टी वैल्यू है जो आपने डेटा से कैलकुलेट किया, और ये हमें स्टार्ट में सर ने करवाया था, तो सर हमें दे सकता है टी वैल्यू या जी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। जी में सिर्फ ये होगा कि स्टैंडर्ड एरर जो हमें गिवन होगा वो पॉपुलेशन का गिवन होगा, तो उसमें फिर हम सैंपल साइज से उसको डिवाइड कर देंगे। बस ये डिफरेंस होता है उसमें। उसमें जो यहाँ पे तो स्टैंडर्ड एरर हमने फाइंड, स्टैंडर्ड डिविएशन यूज की है, ये सैंपल की है। वहां पे उस केस में जी में हम ये वाली यूज करते हैं, ये वाला जो साइन है ये पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड एरर को, स्टैंडर्ड डिविएशन को शो करता है। और ये जो एस मैंने लिखे हैं ये सैंपल साइज के स्टैंडर्ड डिविएशन को शो करते हैं। तो if without now this 2.09 is being calculated using the data now, अगर रिग्रेशन वाली आप थोड़ा इक्वेशन याद रखें तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये रेंज होती है उसकी। अगर इस रेंज से बाहर है टी की वैल्यू तो वो सिग्निफिकेंट होता है। तो it's just above 2, it's just above 2, even if it was 2, just 2, it would have still be a significant, it still be considered as a significant. So it's just above 2, so 2.09, so it is actually significant. तो अगर आप पी वैल्यू पे भी आए तो वो भी आपको 0.03 ही बता रहा है, विच इज लेस देन 0.05। तो मतलब सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है? आप अपना जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर, यू आर एबल टू रिजेक्ट योर नल हाइपोथेसिस। तो जब आप इसको रिजेक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि ये होल्ड कर रहा है। So there is a difference between the new model and the old model. So that means your model, your new model is significant. So you made a conclusion, right? So I hope कि understand, like इसकी understanding हो गई होगी। और जो channel मैंने बताया, the way we found out the t statistic, और इसमें थोड़ा सा मैथ्स के थोड़ा ये फायदा होता है कि like you get to know about the proper channel, how you reach to the value that is being mentioned. So what is the null hypothesis and the alternate hypothesis for this two sample test? No, just answer. The first is the H naught, the mean number of steps for is greater than? No, it's not greater than. It should be equals then. क्योंकि अगर जीरो होगा, हम ये कह रहे हैं ना कि जो न्यू है और जो ओल्ड का डिफरेंस है वो इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो वो ग्रेटर, तो मतलब बोथ शुड हैव बीन इक्वल टू ईच अदर ना, तो ये ए तो वैसे ही रूल आउट हो गया। बी क्या है? द मीन नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ न्यू मॉडल इज इक्वल टू द ओल्ड मॉडल, पहला तो ठीक हो गया। Alternate क्या है? The mean number of steps for new models is not equal to the old model. Yes, it can be true. बाकी दो भी देख लेते हैं। The mean number of steps for the new models, नहीं ये भी गलत है। H not the new has a lower base, नहीं ये भी गलत है। So the B is the correct option. ठीक है। नॉट इक्वल का मतलब है कि वो या तो ग्रेटर होगा लेस होगा, बट इस केस में वो ग्रेटर ही है। Second question है, given a p value of this, yeah, we can reject the null hypothesis at 5%. अच्छा, अगर आपके पास सिग्निफिकेंस लेवल नहीं दिया हो तो बाय डिफॉल्ट 5% होता है। बट हाँ, कभी वो आपसे 10% का भी पूछ सकता है। 10% इज अ वेरी लूज मार्जिन, बट बहुत टाइट जो होते हैं वो 1% होते हैं, जिसपे 3 स्टार्स आते हैं आपके पास। 5% पे देर 2 डबल स्टार, और इस पे 1 स्टार आपको मिलता है। व्हाट डज दिस इम्प्लाई? तो अगर आपके सिग्निफिकेंस आपकी पी वैल्यू से वो कम आ रही है, अगर आपने रिजेक्ट कर दिया, तो मतलब कि ये आपका बी, ये वाला जो है आपका, ये होल्ड कर रहा है। वो ऊपर भी हमने देखा था। तो yes, we reject the null hypothesis, implying that the new model has a statistical significant impact on the user engagement. Yes, that's correct. ठीक है, the A option is correct.
द पी बी क्या कहते हैं, नो वी फेल, नहीं ये गलत है। यस वी रिजेक्ट बट दिस डज नॉट मीन, नहीं ये भी गलत है। दिस डज मीन दैट द न्यू मॉडल इज बेटर। ठीक है, डी है नो बिकॉज द पी वैल्यू नहीं। It had the 95 confidence interval for the difference in the mean daily steps between the two models. What does this interval suggest? The new model user took more steps. बी भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। देखो यहाँ पे वो ये ठीक था, लेकिन यहाँ पे इसने इंक्लूड कर दिया जीरो को। तो जब 20.3 से आप 679 की रेंज में ट्रैवल करते हो, तो इसमें कहीं पे बीच में जीरो तो आते ही नहीं है। Like you are traveling in a positive direction, you are moving from 20 to 600, so there is no zero on the number line. तो ये यहाँ पे आके गलत हो जाता है, तो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। और ऑप्शन ए में वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने, अब हमारा नल हाइपोथेसिस ये था ना कि जो म्यू न्यू में और म्यू ओल्ड में जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है जीरो के। तो मतलब कि न्यू जो है वो इट्स ग्रेटर देन ओल्ड। और मीन कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता, स्टेप्स कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकते। तो ये हो नहीं सकता कि ओल्ड की वैल्यू न्यू से बड़ी हो, तो इट्स दिस नीड्स टू बी पॉजिटिव। वो जीरो तो कभी हो गई नहीं। तो व्हेन इट नीड्स टू बी पॉजिटिव इसका मतलब है कि ये वैल्यू बड़ी होगी इससे हमेशा। तो जो न्यू है वो हमेशा बड़ी होगी। और स्टैंडर्ड आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल में आपको पीछे भी एक्सप्लेन किया, उसका मतलब भी यही है कि आप 10 दफा डिफरेंट सैंपल्स निकालें तो उनकी रेंज इसी बीच में आ रही होगी। कोई यहीं से नंबर निकल के आएगा, और दोनों में डिफरेंस कहीं यहीं से होगा। In the context of this text, question number 4, what would a type 1 error and a type 2 error would be? तो ये टाइप 1 एरर क्या था? टाइप 1 एरर आई थिंक ये था कि जब आपका टाइप 1 एरर था रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट वाज ट्रू। हाँ एग्जैक्टली। टाइप 1 एरर की अगर हम बात करें, तो हम टाइप 1 एरर में होता ही है कि एच जो हमारा नल हाइपोथेसिस होता है, ठीक है, वो एक्चुअल में ट्रू होता है। ठीक है, मतलब इस केस में हमारा क्या था, अगर हम कहते कि ओल्ड और न्यू इक्वल थे तो वो ट्रू था। अगर वो ट्रू होता और हम उसको रिजेक्ट कर देते। एंड जस्ट रिमेंबर वन, आप दोनों को याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ टाइप 1, और टाइप 1 इज द मोस्ट सेंसिटिव वन। इन अ सेंस कि अगर टाइप 1 एरर हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस सिवियर होते हैं एज कम्पेयर टू टाइप 2 एरर। ये भी आई थिंक सर ने क्लास में भी बताया था। तो टाइप 1 एरर में, अगर टाइप 1 एरर में ये होता है कि अगर आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू था और आप उसको रिजेक्ट कर दो, तो ये टाइप 1 एरर होता है। और ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस पे बड़े सिवियर होते हैं। मतलब ये कि अगर हम वो जेल वाली एग्जांपल भी ले लें, तो अगर आपका एच नॉट क्या था, आपका एच नॉट था कि जो बंदा जो क्रिमिनल था वो, उसने कोई क्राइम नहीं, मतलब अगर कोई बंदा था, ही वाज नॉट अ मर्डरर। ठीक है, ही डिडंट कमिट द क्राइम, डिडंट कमिट द क्राइम। और एच नॉट एच ऑल्टरनेट था कि उसने क्राइम किया था, डिड द क्राइम। तो आप बेसिकली कर ये रहे हो कि ये ट्रू था, ये ठीक था, लेकिन आपने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो जब रिजेक्ट कर दिया तो आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो, और ये एक्सेप्ट करने के बाद उसको सजा दे रहे हो। तो इट्स बेसिकली लाइक इट्स एन जस्ट एन एनोलॉजी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन इट्स ट्रू। ठीक है, दैट्स द कॉन्सिक्वेंस, एंड द कॉन्सिक्वेंस इज द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में आपने ज्यूम कर रखा होता है, आप टेस्ट करना चाह रहे होते हो, वो आपका ट्रू हो जाता है। और फिर उसकी बेसिस पे आप डिसीजन ले लेते हो, और वो डिसीजन समटाइम्स कैन severely hurt your business or your like overall situation. So type 1 error में ये होता है, the concluding the new model is effective when it is not। नहीं ये गलत है। टाइप 1 एरर ये नहीं होता when it is not effective but you, अगर ये अदर वे अराउंड होता है, लाइक इफेक्टिव नहीं होता और आप उसको इफेक्टिव बोल देते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। टाइप 2 एरर उसका ऑपोजिट होता है। तो वो आई थिंक लाइक दो चीजें अगर बिल्कुल एक मिलती जुलती हो, तो उसमें से एक चीज आप याद रख लो, टाइप 1 एरर में यही है। ठीक है, टाइप 1 एरर कंक्लूडिंग द न्यू मॉडल इज नॉट इफेक्टिव व्हेन इट इज नॉट इफेक्टिव।
नहीं नहीं, फर्स्ट वाला ठीक है, सॉरी नेवर माइंड, फर्स्ट वाला ठीक है। टाइप वन एरर यही है कि द न्यू मॉडल इज इफेक्टिव व्हेन इट इज नॉट। ठीक है, तो ये पहले वाला ठीक है आपका। सॉरी, तो ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत। सो द ए इज करेक्ट। जब आपका न्यू मॉडल इफेक्टिव नहीं था और आपने उसको इफेक्टिव कर दिया, कंक्लूड आपने ये किया कि वो न्यू मॉडल इफेक्टिव है, बट इट वाज नॉट इफेक्टिव। जस्ट कंपेयर इट विद दिस एनोलॉजी दैट आई क्रिएटेड। Question है bonus question. अच्छा, okay. Imagine the tech query deciding whether to release an improved fitness tracker model in a competitive market based on the result of an experiment. Which type of mistakes should the company be more worried about? Type 1 error, type 2 error, both are equal. अच्छा, टाइप 1 यहाँ पे सर ने लिख भी दिया। लाइक अब अगर आप ये दोनों एमसीक्यूज पढ़ें तो यू कैन इजीली आंसर दिस एमसीक्यूज, बिकॉज यहाँ पे सर ने बता दिया कि टाइप 1 एरर की डेफिनेशन है क्या। और मैंने आपको पहले बताया कि टाइप वन एरर ही सबसे खतरनाक होता है। लाइक उसमें आप बेसिकली एक चीज इफेक्टिव नहीं है और आप उसको कंक्लूड कर रहे हो कि इफेक्टिव है। एक बंदे ने क्राइम नहीं किया लेकिन आप कंक्लूड ये कर देते हो कि उसने क्राइम किया, तो ही इज गोइंग टू सी द कॉन्सिक्वेंसेस एज एन इनोसेंट गाय। तो इसी तरह बाकी सिचुएशंस में भी यही होता है। अगर उनका मॉडल इफेक्टिव था ही नहीं बट उन्होंने बहुत सारे पैसे लगा के उनको मॉडल रिलीज कर दिया और फिर उस पर बैकलैश आएगा, तो वो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो टाइप वन एरर इज मोर harmful in this setting. So yeah, this is all about the first question.